To demonstrate the reflection of light, I am using the convex mirror now, and it is a diverging mirror. So we'll observe the diverging property of this mirror. So this is the setup. Let me show you in the dark. Here light will be incident on the mirror and the reflected light will diverge. So here I'll try to make the path more clear by adding little smoke. So you may see the path is now very much clear, very much. Both the parallel lights are incident on the mirror and the reflected light is diverging. Thank you. Now I will try to demonstrate the converging property of concave mirror, and this is the setup. Now I will try to show them in dark. So you may notice the light are coming parallel and then they will reflect back and will focus at some point. I have kept the mirror little tilted so that the focus point will be different from the parallel radiation. So the light radiations will not mix up, rather both the focusing point and the parallel rays will be clearly visible to you. We will start a new chapter today, that is chapter number 9, optics. And the basic concept of this chapter you have already studied in class 10th. So beginning part I will shortly recap just to give an idea, and then we'll come to the numerical section, which is more important for this particular chapter. So first of all, when a light fall on a surface of a second medium, it can get reflected, it can be refracted, and it can be absorbed. So different phenomena can take place, but if the light will reflect back in the same medium, that means if light is incident on an opaque surface and it will trace the path in the same medium, some another direction, but in the same medium, no change in medium take place, then that process is called as reflection. As you may see, light is coming from this side and will be reflected back from the surface, and the surface is what? Opaque, या you can say mirror. और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाला है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब यहाँ कुछ लॉज हैं और जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिक फर्स्ट लॉ, एंड सेकेंड लॉ सेज दैट ऑल दी light radiation, angle of incidence, angle of reflection and normal, they lie in the same plane, वो उसी plane में lie करते हैं। now कुछ notations हैं जो हमें पता होनी चाहिए, किस चीज़ से हम किसको डिनोट कर रहे हैं। सो C क्या है यहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। F है आपका फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट भी बोल सकते हैं। P पोल है। A और B जो है वो आपका अपर्चर है। अपर्चर स्मॉल लेते हैं जनरली हम नॉर्मल लेंसेज का, बिग अपर्चर लेंसेज डिज़ाइन करना मुश्किल होता है। द एक्सिस पासिंग थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और लीनियर अपर्चर किसे कहते हैं? लीनियर अपर्चर होता है एक लाइन हम टच करा दें फ्रॉम द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द लेंस, यानी कि अब एक्सट्रीम साइड्स जो होते हैं कनकेव शेप की, उसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें तो फिर ये बना देगा आपका लीनियर अपर्चर। और इसी तरीके से यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगुलर अपर्चर भी बोलते हैं। मतलब ट्राइंगल बन रहा है एक तरीके से ACB, और C पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगुलर अपर्चर। एंगल सबटेंडेड एट C बाय द बाउंड्री ऑफ द मिरर, जो आउटर बाउंड्री एज है उससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको कहते हैं हम एंगुलर अपर्चर। नाउ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ऑल्दो साइन कन्वेंशन भी आपने पढ़े हैं, बट क्विकली रिकैप दें। अगर वर्टिकली स्ट्रेट रखा है, सेम हाइट मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा है तो उसे आप हाइट को पॉजिटिव लेंगे। अगर इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है, देन इट इज़ नेगेटिव। अगर लाइट रेडिएशन इधर जा रही है और आप भी ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया है ये इंसिडेंट लाइट का है, ये इंसिडेंट लाइट है। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आप पोल से ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो ऑब्जर्व करते हैं हम पोल से ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप पोल से ऑब्जर्व कर रहे हो और सेम डायरेक्शन विद इंसिडेंट लाइट से मैच कर रही है तो फिर पॉजिटिव। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो यानी मेज़र कर रहे हो तो फिर आपका यू क्या हो जाएगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ है या इमेज डिस्टेंस है, वो सब नेगेटिव हो जाता है अगर इंसिडेंट रे से आप अपोजिट जाके मेजरमेंट ले रहे हो, और अगर आप उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव। Let us talk about the first derivation of this chapter,
ये चैप्टर जो है ना बेसिकली बहुत सारी डेरिवेशंस हैं इसमें और बहुत मतलब सिमिलर टाइप की डेरिवेशंस हैं, तो लेकिन फिर भी हमें हर एक को अलग अलग करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रे डायग्राम है जिसमें मैंने एक कॉन्केव मिरर कंसीडर किया है। दिस इज़ द कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर से के ऊपर हमने एक इंसिडेंट लाइट भेजी, वो रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये सर्टेन रूल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड जो लाइट रेडिएशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिट्रेस करेगी, एंड इफ़ इट विल पास ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वापस आना है उसको। और अगर आप कोई लाइट रेडिएशन फोकस से पास कर रही है तो देट विल बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर एक ही रूल ले रहे हैं कि एक लाइट रेडिएशन आई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई, और यहाँ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाल दिया है इंसिडेंट पॉइंट पे। जिस पॉइंट पर लाइट रेडिएशन ए हिट कर रही थी, ए से आने वाली लाइट रेडिएशन हिट कर रही थी, उस पॉइंट पर हमने नॉर्मल डाल दिया। तो अब हमें पता है कि इस साइड वाला एंगल, ये जो ए और सी के बीच में नॉर्मल के बीच में, दिस इज़ द नॉर्मल, सो नॉर्मल के बीच में और ए इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। अगेन यू मे सी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये आई है तो ये अल्फ़ा जो है वो आई के इक्वल होना चाहिए। कैसे? ये आपके they are alternate angles, so we can write that as AB is parallel to this axis, let us name it CP, call it as CP, therefore angle alpha is equal to angle I. Angle I was already equal to R because of laws of reflection, therefore we can write angle alpha is equal to angle R. और जब भी आपके पास दो एंगल्स इक्वल हो गए तो एक ट्राइंगल बन गया कि इन ट्राइंगल बी, दिस बी एफ एंड सी, सो इन दिस ट्राइंगल बी एफ सी योर एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर सी एफ शुड बी इक्वल टू एफ बी। ये फिगर को देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे, बट बाय रूल्स दिस विल बी, क्योंकि ये तो मैंने रेंडमली रफली बनाया है, हो सकता है थोड़ा लाइन इधर उधर शिफ्ट हो गया हो, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा आर के इक्वल है तो फिर आपकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, अगर वो एक ट्राइंगल के अंदर के ट्राइंगल्स मतलब एंगल्स हैं तो अगर एंगल अल्फ़ा एंगल आर के इक्वल हो जाता है तो सी एफ इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। बट वी नो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस जो है उसको हम आर बोलते हैं, और दिस सी पी, बट सी पी कैन बी रिटन एज सी एफ प्लस एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी. Also, we will assume here that the aperture is very small. Consider is small. Aperture is small, so we can say that CF, FB. This is FB. I will write as BF is equal to F of P. क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इसे मैं दिखाती हूँ आपको। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब अपर्चर बहुत छोटा है, तो फिर ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल मानी जाएगी। तब आपका बी पॉइंट और पी पॉइंट बहुत दूरी पर नहीं होगा, और अगर पी पॉइंट बी पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर उनकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर लेंथ सेम है तो हमने कह दिया कि अगर आपका ये जो टोटल डिस्टेंस था वो सी पी जो था वो दिस प्लस दिस था, लेकिन ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज़ इक्वल टू सी ऑफ पी। लेकिन ये और ये पार्ट तो इक्वल हो गया था बाय द लॉ ऑफ द ट्राइंगल, कि हमने अभी कहा था कि बी एफ जो है वो एफ पी के इक्वल है, सो एफ सी के इक्वल है। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी पी योर एफ पी वॉज इक्वल टू बी ऑफ एफ। सो हम इसको चेंज कर देते हैं, सी एफ इज इक्वल टू इसमें यहाँ पे एफ पी की जगह पर, यहाँ एफ पी की जगह पे इधर बी एफ लिख देती हूँ, तो बी ऑफ एफ लिख दिया। यही एफ बी था आपके पास, बट क्योंकि सी एफ तो एफ बी के इक्वल है, बी एफ कह लो या एफ बी कह लो, तो दोनों इक्वल है, तो यू मे राइट इट एज 2 ऑफ सी ऑफ एफ, और आप या फिर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ बी। एंड एफ ऑफ बी का जो वैल्यू है
वो एफ पी के इक्वल है, और एफ पी किसके बराबर है, आपका फोकल लेंथ के बराबर है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ पी, एंड एफ ऑफ पी इज योर फोकल लेंथ एंड सी पी इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वी कंक्लूडेड दैट आर इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ. क्विकली फिर से समझ लेते हैं एक बारी सिर्फ डायग्राम से. लाइट रेडिएशन स्ट्रेट आ रही थी, डाइवर्ट हुई, फोकस से निकली. दूसरा हमने नॉर्मल डाल दिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो लाइट रेडिएशन इधर से आ रही थी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, जो रिफ्लेक्ट होके गई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी. एंड दोनों ही क्योंकि इक्वल होते हैं तो फर्स्ट लॉ लगा दिया. लेकिन ये एक ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं तो फिर इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो हम आई को अल्फ़ा के इक्वल भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आई अल्फ़ा के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब अल्फ़ा आर के इक्वल भी हो गया, क्योंकि अल्फ़ा आई जा आर के इक्वल भी था, आई अल्फ़ा के इक्वल भी हो रहा है, तो दोनों ही सिमिलर हैं, तो आई अल्फ़ा आर के इक्वल भी हो जाता है. और अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी एफ बी जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल. अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो वही रूल लगाया. लेकिन आपका ये जो साइड है वो आपके एफ पी के इक्वल तब हो जाता है जब अपर्चर हम स्मॉल लेते हैं. तो इसका मतलब अगर हम टोटल सी पी निकालना चाहते हैं, दैट सी पी शुड बी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, बट एफ पी तो एफ बी के इक्वल है, तो एफ बी और एफ सी भी इक्वल है. तो हम इसको बजाय इसके हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी एफ या फिर ट्वाइस ऑफ एफ बी और ट्वाइस ऑफ एफ पी. यानी ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, सी एफ इसके इक्वल है एफ बी के, और एफ बी जो है वो एफ पी के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए एक दूसरे के. तो इसीलिए हम किसी को भी टोटल डिस्टेंस निकालने के दोनों में से किसी को भी ट्वाइस कर दें, तो ट्वाइस किया. लेकिन ये डिस्टेंस हमें पता है एफ, और वो वैल्यू प्लेस करते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ जाता है. आगे देखें क्विकली, ये भी रिकैप का सेक्शन ही है. कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो आपकी नेगेटिव कन्वेंशन के साथ आती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो वर्चुअल फोकल लेंथ होती है और वो पॉजिटिव होती है. ये रियल फोकल लेंथ है. तो हम कहते हैं रियल और वर्चुअल का डिफरेंस क्या है कि जहाँ पर एक्चुअली लाइट रेडिएशन मीट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज रियल पॉइंट. जहाँ पर वर्चुअली सिर्फ लगे कि वो वहाँ पर मिल रही हैं तो दैट इज़ योर वर्चुअल फोकल लेंथ. तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल, कॉनकेव में रियल, बट रियल में नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स के अंदर पॉजिटिव. सो यहीं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देख लेते हैं. क्या अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हो, हेयर इन दिस केस, पहले लेबलिंग मैंने नहीं किया था, अब मैंने कर दिया है. तो अब हम कहते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में इमेज बनती है. लेकिन कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है. सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बन जाएगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी. सेम देखते हैं अगर आपने फोकस से भी पहले, एफ से भी पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो फिर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी. तो ये सारे केसेस जो थे ये कॉनकेव मिरर के केसेस मैंने लिए हैं. नेक्स्ट ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर का भी केस देख सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ द फोकल के, फोकस लेंथ से पहले, बाद में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे बस इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है आपने, इस साइड नहीं. इस वक्त आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड होगा, तो सेंटर ऑफ कोई लाइट रेडिएशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो उसी को रिट्रेस कर जाएगी, और कोई लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है यानी डाइवर्ज हो गई है तो वो कहाँ से निकलेगी, हमें लगेगा कि ऐसे वो फोकस से जा रही है. जहाँ पर ये दोनों रेडिएशन मिलती हैं वहाँ पर आपका इमेज बनता है, और ये इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है. तो हमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर के अंदर पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक केस वर्चुअल का होता है, बाकी सभी केसेस कैसे होते हैं, रियल इमेज बनाते हैं, इन्वर्टेड बनाते हैं. लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है. कनकेव मिरर बनाएगा तो एनलार्ज्ड बनाएगा वर्चुअल इमेज, और अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा तो वो डिमिनिश्ड बनाएगा. लेट अस derive the relationship for the mirror formula and in the case of concave mirror, जिसमें हम रियल इमेज का केस ले रहे हैं. सो हमने कनकेव मिरर अज्यूम किया एंड ए बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है. लाइट रेडिएशन स्ट्रेट जाएगी,
रिफ्लेक्ट बैक होगी और कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रेडिएशन पोल पे इंसिडेंट हो रही है, वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेगी। एंड द थर्ड वी आर कंसीडरिंग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। सभी पोजीशंस को स्पेसिफाई कर दिया है। फोकल लेंथ को कहते हैं, एफ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, बट अगेन हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ये माइनस होगा। सेम ऐसे ही इमेज डिस्टेंस भी माइनस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी आपका नेगेटिव में लेके चलेंगे हम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यू भी नेगेटिव में होगा। तो हमें क्या ढूंढना है इस डेरिवेशन में, हमें दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए जो इक्वल हों, सिमिलर हों। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक ट्राइंगल हो गया आपका दिस वन and another triangle is this one. In this triangle you may notice कि this angle and this angle is equal, that means angle C जो है vertically opposite दोनों triangles का part है, और angle B and B dash जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। सेम अगर हम दूसरा पेयर ऑफ ट्राइंगल लें, वो मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। दूसरा पेयर ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे ये बिगर ट्राइंगल दिस वन, जो कि पोल से जाके कनेक्ट हो रहा है, पोल से दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं। एक बना हमारे पास दिस बिगर ट्राइंगल, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और क्योंकि लाइट रेडिएशन पोल से रिफ्लेक्ट हो गई तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट वी ऑल्सो नो दैट एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। सो ये तो एक एंगल हो गया, एंड दूसरा दिस बी डैश एंड बी इज अगेन मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमारे पास सेम साइड रेशियो का ऑप्शन होता है। तो हम दिखाते हैं, अब हम लिखना शुरू करते हैं कौन कौन सा पेयर, पहले इन दोनों पेयर की बात कर लें। तो वी हैव ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी। इन दोनों में हम कह सकते हैं दोनों सिमिलर हैं, तो सेम साइड रेशियो ले लेते हैं, एंड दैट विल बी गिवन बाय ए डैश बी डैश, देयरफॉर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी। दिस ए डैश बी डैश इज डिवाइडेड बाय ए बी, so we have taken a dash b dash divided by ab, and then now this base upon base of the another triangle, so cb dash, this cb dash by cb, this cb we can change in terms of uv, जो हमें डायमेंशंस गिवन है, यानी कि गिवन पैरामीटर्स में हम इसको कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं कि bc निकालना चाहते हैं, तो bc इज टोटल लेंथ वाज u, उसमें से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट दी r। सो मैंने पहले सी बी निकाला है, दैट विल बी माइनस यू, माइनस ऑफ आर आना चाहिए था, बट बिकॉज हम माइनस और ये माइनस है ही ऑलरेडी, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो वी कैन राइट इट एज माइनस यू प्लस आर। सेम ऐसे ही सी बी निकालते हैं ऊपर वाला, सो दिस होल सी पी तक का डिस्टेंस इज माइनस आर, एंड आपका जो वैल्यू बी डैश तक हो गई वो हो गई माइनस वी, माइनस एंड माइनस अगेन प्लस, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेम वे वी कैन कैलकुलेट द अनदर टू ट्राइंगल, ए बी पी ट्राइंगल लेते हैं और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड पी, बोथ हमने ट्राइंगल्स लेने हैं, एंड वी कैन अगेन प्रूव दैम दे आर सिमिलर, सो वी कैन टेक सेम साइड रेशियो। यू मे राइट दिस, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर लिखिए देते हैं, because this and this triangle are similar, therefore we can write it. Now this and this triangle is similar, so we can write again a same side ratio a dash b dash by ab, and on the other side now we have to write pb, first pb dash by pb. Now what is pb is your image position minus and object position, that is again minus, this equation number 2. Now as the left hand side you may see this and this, they are equal, so we can compare the equation number 1 and equation number 2. So we are comparing now, minus r plus v by minus u plus r is equal to minus v by u. माइनस एंड माइनस कैंसिल हो रहा है तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वी कैन राइट ru after cross multiplication and plus vu. On the other side you have vu minus symbol plus rv, and divide the entire equation. First we rearrange keeping taking the r and r on the one side and place the value of r. We know that r is equal to 2 of f, twice of focal length के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 2f प्लेस कर देंगे यहाँ पर, and then उसको taking r on r one side. It will be after rearranging vr plus ur
is equal to 2uv. Now place r again to we will get u 2f on this side and 2 both from both side will be cancelled out. You are left with vf plus uf is equal to uv, and then divide the entire equation by u, r and v. After division we will get the relationship 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is your final expression for the mirror formula.